Assalamu alaikum, everyone. Thank you all for joining us. My name is Suha Hamad, and I am the Management Training Officer for both.bk as well as ShopBoat. And today we are joined by the COO of Down Syndrome Club, who is also a clinical psychologist, Ms. Fatima Rue Zainab. Over to you, Fatima. Thank you so much, Soha, for having me. So basically, I am Fatma Ruhe Zainab. A slight introduction of who I am. I am basically a graduate in psychology. I completed my graduation in psychology back in 2019. Then I did my post graduation in clinical psychology. That was in 2022. And then I have been working with Down Syndrome Club Pakistan since ever since its inception. But right now, currently I'm serving as our chief operating officer, and I'm also practicing my clinical practice. But I do take up private sessions for that. So yeah, that's pretty much about me. First question, Fatma. Tell us a personal story that inspired your journey in early childhood development. Asha. So basically, this is all very personal to us. Back in 2015, when we just started our university. So it was like our CEO, Miss Aisha Wahid. Basically, we were all batchmates, and Aisha has a sister. She's Maria. She's with Down syndrome. So when Aisha was actually looking for opportunities for Maria, she could actually feel that in Twin Cities there are not a lot of opportunities for individuals with Down syndrome. Like you can have private therapeutic sessions, but a completely solely an institute that works for individuals with Down syndrome wasn't existing back in 2016. So we thought of we took this initiative and we thought of starting working for individuals with Down syndrome, and we initially held a lot of awareness session in Islamabad, and then we moved on towards providing educational and therapeutic services for these individuals. And since 2016, we have been working in a lot of domains related to Down syndrome, from support groups, helping out the parents, caregivers, for raising awareness. We have been conducting events at different platforms, and then we also have our social media standing where we try our best to educate as many people as we can and spread the word around for Down syndrome. So we basically teamed up. We were a group of friends. We teamed up, and then we turned out to be actually professionals in the field, and actually we started working for Down syndrome. So that is how uh, the inspiration behind all of this was actually Maria, and through this thing we wanted to actually facilitate a lot of individuals who were actually not receiving any services. So this is pretty much a small short introduction of how we started it up, and now we are currently located in I8, working on different chapters of our organization, and we are trying our best to do whatever we can, and we are trying our best to be the utmost advocates for Down syndrome. All right. And फातिमा, सिंस आप लोगों का इतना अरसे से एक्सपीरियंस है और काम है डाउन सिंड्रोम के अंदर, why what would you give what is that one myth about child development that you wish every parent knew? Asha, myths are something. When we talk about Down syndrome, myths are something जो हमें जिसका you can say कि बहुत सारी हैं, ठीक है? Yeah. And the reason behind that is because actually true information wasn't really available to parents, ठीक है? Down syndrome is not a it is now a very common condition, but it is still not as compared to different other disabilities. तो उसके साथ थोड़ा सा ये सीन था कि parents didn't have a lot of information, so myths are just revolving around like crazy. But Mhm. the most important thing that I feel, जो हमारे parents हमारे पास आकर share भी करते हैं, and I feel that this needs to be spread out, and that is achieving milestones. Yeah. दो तीन चीजें I would like to highlight in this, but achieving milestones is अंदर ऐसी चीज है कि बच्चा जो है वो
कुछ नहीं कर सकता. दैट इज वन ऑफ द मिथ कि बच्चा इज लेट्स से उसकी फंक्शनिंग इफेक्ट हो गई है. हालांकि ऐसा नहीं है. डाउन सिंड्रोम के बारे में दो चीजें हैं कि एक तो नंबर वन, इट इज नॉट ट्रीटेबल. ये Right. पेरेंट्स अक्सर हमसे सवाल पूछते हैं ठीक हो जाएगा कि नहीं. तो नंबर वन, इट इज नॉट ट्रीटेबल बिकॉज इट इज अ जेनेटिक कंडीशन. इट इज नॉट कह लें कि कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन हो गई या कोई एक फिजिकल एलिमेंट हो गई, you can treat it up. It's not like that. It's like Right. your genetic makeup. So it stays Mhm. with you throughout your life. So what we can do in this is कि this is manageable. ठीक है, आप उसको Mhm. manage कर सकते हो. होता क्या है basically in Down syndrome is since you have an extra copy of chromosome 21 throughout spread throughout the cells of your body, ठीक है, in the classic trisomy 21 जो टाइप है डाउन सिंड्रोम की. सो Mhm. उसकी वजह से होता क्या है कि डेवलपमेंटल डिलेज आते हैं. बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन थोड़े डिले के साथ अचीव होते हैं. Mhm. तो जो मिसकंसेप्शन इसके अराउंड रिवॉल्व करती है ना, वो ये है कि बच्चा बहुत सी चीजें नहीं कर पाता, फिर बच्चे की फंक्शनिंग इफेक्ट हो जाती है एंड द चाइल्ड इज unable to achieve a lot of things, do a lot of tasks as compared to जो हमारे typically developing बच्चे होते हैं. जी. But the reality in that is कि the more you work on the kid, the more right direction, जितना आप early उस बच्चे के साथ काम करना start करते हो, that is where you will get to know कि मेरा बच्चा late ही सही but my kid is being able to achieve all of this. So I think Right. so milestones achieve होना जो है वो हर बच्चे का different level पे है. हमारे डाउन सिंड्रोम के अंदर भी आप टिपिकली डेवलपिंग बच्चे को भी देखें तो सब बच्चे डिफरेंट लेवल पे माइलस्टोन्स अचीव करते हैं. Mhm. तो डाउन सिंड्रोम के अंदर भी ये है कि बच्चे फंक्शनिंग कर लेते हैं. उनका दे विल अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स बट इट विल वेरी कि कौन सा बच्चा कब कर रहा है. Right. It's completely understandable. People have so much lack of patience, aajkal, that they want to rush into things that they Yeah. forget that kids take their time, which is understandable. Next question for you is that if you could give like one powerful tip for parents to support child development, what would it be? I think you have just like mentioned that, and that is one of the key points जो हमें बहुत child development के जो भी throughout the process होते हैं ना, उसके Mhm. अंदर parents को आजकल जो ज्यादातर चीज देखने की है, that is patience. Number one is patience. आप अपने typically developing बच्चों को भी अगर आप देखें तो जैसे हमारे नॉर्मल घरों में क्या होता है कि Mhm. मेरा बच्चा बोल नहीं रहा, आपका तो बोल रहा है. मेरे बच्चे ने अभी खाना नहीं शुरू किया, आपका खा रहा है. मेरा बच्चा Mhm. क्रॉलिंग नहीं शुरू की, आपके ने क्रॉलिंग शुरू कर दिया. आप जस्ट इमेजिन इट्स 6 से 8 महीने का बच्चा है, ठीक है, और पेरेंट्स इतना प्रेशराइज्ड फील करते हैं खुद को कि हमारा बच्चा ये चीज इसलिए नहीं कर रहा, मे बी बिकॉज हमने कुछ नहीं किया या मे बी हमारे बच्चे के साथ कोई कंसर्न है. Mhm. हालांकि द की पॉइंट चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर है ना, दैट इज पेशेंस. पेरेंटिंग एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट पेशेंस एंड राइट इन्फॉर्मेशन, ठीक है. Right. अगर आपको इस चीज की अच्छा द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मैटर्स अ लॉट कि आप इंफॉर्मेशन कहाँ से ले रहे हैं. अगर जी. आप इंफॉर्मेशन जो है अगर आप लोगों से इंफॉर्मेशन लेते हैं तो इस चीज को आपको यू नीड टू नो कि द इंफॉर्मेशन दैट यू आर गेटिंग विल वेरी, एंड आप उस पर कभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीपल इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस. लोग अपने Mhm. एक्सपीरियंस से बताते हैं कि हमारे बच्चे के साथ ये हुआ था. दैट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है. सो यू नीड टू बी पेशेंट एंड सिट बैक. अगर आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैठ के चीज देख लेंगे ना कि बच्चा हमारा देखते हैं 1-2 हफ्ते और देखते हैं, शायद कुछ क्रॉलिंग स्टार्ट कर दे, शायद वो कुछ बैबल करना स्टार्ट कर दे, सही है. Mhm. तो अगर आप उस चीज में अपने बच्चे को टाइम देते हैं, डू योर थिंग, और आप उसको उसके साथ इंगेज होते हैं कि वो चीज कर सके, थोड़ी सी आपने उसको एक्सरसाइज करा दी, थोड़ा सा आपने उसके साथ बातें करने की प्रैक्टिस कर ली, तो आपका बच्चा भी चीजें ऑन टाइम अचीव कर लेता है. सो दिस इज लाइक के पेशेंस एंड राइट इंफॉर्मेशन, एंड आई वुड हाईली हाईली सजेस्ट कि just for the sake of sharing, I think so mothers today aajkal what they can do is कि just for the sake of sharing and you know थोड़ा सा आपस में bond create करने के लिए you can always share कि अच्छा मेरा बच्चा ये करता है, आपका बच्चा क्या कर रहा है, to get more ideas maybe. But आप इंफॉर्मेशन को, वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को ट्रस्ट ना करें, एंड डू नॉट एवर फील लाइक दिस इज द ओनली टाइमलाइन या माइलस्टोन जो बच्चा इस लेवल पे अचीव कर लेगा.
आपके बच्चे जो है, नाउ वी हैव सीन एज द टाइम इज बीइंग प्रोग्रेस्ड, के बच्चे जो है, आजकल के बच्चे हैं, आप देखेंगे बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिफरेंट तरीके से भी कर रहे हैं। सो जी। आपको हर टाइम आपके बच्चे के अंदर एबिलिटी है या नहीं, दैट इज वन थिंग, कि वो चीज कर सकता है कि नहीं कर सकता, और आपका बच्चा वो चीज कर रहा है कि नहीं कर रहा, दैट इज अनदर थिंग। तो आप ये देखेंगे कि मे बी आपके बच्चे के अंदर एबिलिटीज है, बट वो इतना पुश नहीं कर रहा अपने आप को वो चीज करने के लिए। तो ये चीजें थोड़ी सी मदर्स को आई वुड लाइक टू एडवाइस ऑन दिस, कि थोड़ा सा आप अपने बच्चे को इंडिविजुअली असेस करें कि मेरा बच्चा क्या चाह रहा है, क्या कर रहा है, या मेरे बच्चे के लिए क्या नॉर्मल है, and start practicing on that. And then again, the information जितना हो सके आप एक्सपर्ट्स को करें। अब तो यूट्यूब के ऊपर और बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देयर आर फुल फ्लैश चैनल्स जो आपको गाइड अप कर सकते हैं। सो आई थिंक सो दैट इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। अंडरस्टैंडेबली सो। एंड आप कह रही थी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नोइंग कि योर चाइल्ड कैन डू दिस या फिर अज्यूमिंग कि योर चाइल्ड कैन डू दिस। कोई अर्ली साइंस हो सकते हैं कि पेरेंट्स को पता चल जाए कि यू अच्छा, नो। सो सोहा, इसमें ना डिफरेंट डोमेन्स हैं। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, आप क्या कह रहे हो, आप देख रहे हो कि छोटी सी चीज है, लेट्स से कि इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, कि आपका बच्चा इमोशन रेसिप्रोकेट कर रहा है कि नहीं। आपको हम्म। पता है हमारे यहाँ जो सबसे इन्फेंट्स के अंदर जो सबसे लोएस्ट लेट्स से एज है की हम्म। तरफ, अगर एज ब्रैकेट्स की तरफ जाएं जिसमें हम कोई डिसऑर्डर कह लें कि डायग्नोज कर सकते हैं, दैट इज 6 मंथ्स। अब 6 महीने का बच्चा है, आप उसको देख के बहुत सी चीजें कह सकते हो, ये कर लेगा, बट अर्ली साइंस की जब आपने बात की ना, तो कुछ चीजें बहुत इंडिकेटिव होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। इमोशनल डेवलपमेंट है बच्चे की, ठीक है, बच्चा एक आई कांटेक्ट है, ठीक है, हम्म। मिसाल के तौर पे आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इमोशनल डेवलपमेंट। बच्चा जो 3 महीने का है या 4 महीने का, वो आपको देख के स्माइलिंग करता है, आपसे बहुत सारे इमोशंस आपको कम्युनिकेट करता है, ठीक है। हम्म। अगर वो बच्चा नहीं कर रहा है, ठीक है, अब आप बच्चा जो है वो सारा दिन बस सीधा लेटा रहता है, ठीक है, और आपसे लेट्स से कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं करता है, तो ये दिस हम्म। इज लाइक अ काइंड ऑफ थिंग कि 3-4 मंथ्स में बच्चे को आपसे बाय फेस एंड बाय मूवमेंट ऑफ आर हैंड्स थोड़ा सा उसकी वो चीज होनी चाहिए। अब आपको पता है कि वो चीज अगर नहीं कर रहा ना, तो यू नीड टू असेस कि क्या बच्चे की देर इज सम लैकिंग इन प्रोसेसिंग कॉग्निशन में, सोच में कोई मसला है, वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा इमोशंस को, वो हम्म। रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहा, जब आप इमोशनली कुछ रिस्पॉन्ड करें वो मे बी आपको नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए इस तरह की कुछ चीजें होती हैं, अर्ली साइंस आपको दिख जाते हैं। हेंस आप उसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप उनके बारे में माइंडफुल हो, आपको पता हो कि अच्छा ये चीजें बच्चा कर सकता है, कर सकता है, करता है नहीं, कर सकता है इस सर्टेन एज ग्रुप के अंदर, इतने हम्म। माह के अंदर ये बच्चा इतनी चीज कर लेता है। तो उसको उसके अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा असेस कर सकते हो कि ये चीज नहीं है। इसी तरह से अगर लेट्स से आपके बच्चे की कोई फिजिकल कंसर्न्स है, ठीक है, जी। अगर बच्चा आपका नेक होल्डिंग की तरफ आप आ जाओ, ठीक है, हम्म। बच्चा गर्दन उठा सकता है कि नहीं उठा सकता, तो ये आपको बहुत अर्ली स्टेज पे पता चल जाता है कि बच्चे की गर्दन संभालने का प्रोसेस आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अगर आपको फील हो रहा है कि देर इज अ कंसर्न, तो मे बी आपका बेस्ट अप्रोच यही है कि आप ये ना सुने कि अच्छा जी किसी से मालिशें करवा ली हैं तो गर्दन को सपोर्ट मिल जाएगी, बिकॉज नो डाउट हर चीज हेल्प आउट करती है, हम्म। बट the right time to do it, and maybe is this should be the only approach towards this, या फिर इस चीज को क्या फर्स्ट अप्रोच होना चाहिए कि नहीं। तो ये चीजें मैटर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर नेक होल्डिंग नहीं है तो यू कैन मे बी विजिट अ स्पेशलिस्ट, ठीक है, हम्म। स्पेशलिस्ट कैन गाइड यू कि मे बी विद मे बी सर्टन थोड़ी सी थेरेपी के साथ, थोड़ी सी फिजियोथेरेपी के साथ द बच्चा कैन स्टार्ट होल्डिंग इट्स नेक। हम्म। लेकिन मे बी देर इज अ मोर सीरियस कंसर्न टू इट, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं, माइलस्टोन्स ये आपको पता चल जाते हैं। एंड आई थिंक सो इसके लिए थोड़ा सा मदर का माइंडफुल होना और एजुकेट होना खुद को is important, because I have I've literally seen आजकल कुछ न्यू मदर्स हैं, ठीक है, हम्म। they are sometimes lost at things because हम्म। there is this notion in our society, ठीक है, कि motherhood is for every woman, ठीक है, राइट। and I would like to say कि no doubt it is for every woman, but with time with things इतनी सारी with अब आप देखिए हमारा क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है, हमारी कितनी सारी चीजें चेंज हो रही हैं, जी। तो
उसका effect on human beings is also varying, and there are new things that are coming up. Hmm. So it's always better and important कि आप motherhood के ऊपर अपने आप को थोड़ा सा educate भी करो. So yeah, So, that's pretty much about it. understandably so. If while we're on the topic of early childhood, can you tell us how important is playtime for early childhood? Playtime is like everything for kids nowadays. क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड की अगर आप बात करें, मिसाल के तौर पे हम ज्यादातर 0 to 5 years की बात करते हैं, ठीक है, जी। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है, 5 साल तक का जो टाइम पीरियड होता है बच्चे के लिए. अच्छा, अब बच्चा 5 साल की टाइम पीरियड में बहुत कुछ डेवलप कर रहा होता है, एंड एज पर सर्टेन थेरीज जो बच्चे की पर्सनालिटी है, जो उसकी शख्सियत है, वो उसके हम्म। पहले 5 साल में बन जाती है. हालांकि ऐसी चीज है कि शख्सियत इटसेल्फ क्या है, उसके ऊपर बहुत सी चीजें होती हैं कि वो विद टाइम भी आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आते रहते हैं. बट एक बेसिक कोर चीज जो है ना इंसान की पर्सनालिटी की, दैट इज इन फर्स्ट 5 years. और पहले हम्म। 5 साल में बच्चा क्या कर रहा होता है, आप देखते हैं कि बच्चा खेल रहा है. तो अब बच्चा खेल रहा है और उसका मेजोरिटी टाइम प्ले के अंदर गुजर रहा है. हम्म। तो उसका कह लें कि उसकी जिंदगी का फिलहाल जो पहले 5 साल का मकसद है ना, दैट इज खाना पीना सोना और खेलना, दैट इज इट. तो राइट। खाना पीना जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही प्ले टाइम भी इंपॉर्टेंट है. अब प्ले टाइम करता क्या है, बच्चा, आपको लगेगा बच्चा खेल रहा है, बच्चा कुछ नहीं कर रहा, बच्चा खेल रहा है, बट प्ले टाइम इज एक्चुअली सर्विंग इन एवरी सिंगल थिंग. बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम कहते हैं कि जैसे सोचों का बनना, ठीक है, कि आप हम्म। किस जावियों से सोचते हैं, आप क्या पर्सपेक्टिव है आपका. बच्चे की जो बच्चा चीजों को अंडरस्टैंडिंग बनाता है ना, दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है. हम्म। सो दैट इज हैपनिंग उसके पहले 5 साल के अंदर, चीजों को देखने की और ऑफ कोर्स उसके ऊपर फिर टॉप पे चीजें ऐड होती रहती हैं. बट एक बेस बन रही है उसकी जी। उसकी सोचों की बेस बन रही है. उसकी सोशल कह लें, उसकी सोशल अंडरस्टैंडिंग की बन रही है कि सोसाइटी कैसे है, मामा पापा कैसे होते हैं, अच्छा बहन भाई कैसे होते हैं, कजन्स क्या होते हैं, लेट्स से ग्रैंड पेरेंट्स क्या होते हैं. अच्छा, बच्चा स्कूल अगर लेट्स से मॉन्टेसरी में जा रहा है, किसी में भी जा रहा है, छोटा लेट्स से मॉन्टेसरी में भी नहीं है, डे केयर में भी है, बच्चे के फ्रेंड्स हैं, तो वहां पे क्या पैटर्न्स चल रहे हैं. तो बच्चे ना अपनी सोशल अंडरस्टैंडिंग भी थ्रू प्ले ही उस टाइम में बना रहे होते हैं. एंड देन इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, कि इमोशंस रिकग्नाइज करना, ठीक है. आई विल गिव छोटी छोटी सी एग्जांपल्स विद ऑल ऑफ दीज, बट लेट्स से सोच हो गई सोसाइटी में बच्चा अपना प्ले टाइम के थ्रू जा रहा है, बच्चा हम्म। इमोशन अपने डेवलप जो कर रहा है, दैट इज ऑल्सो थ्रू प्ले. सही है. हम्म। क्योंकि आप, ऐसा नहीं है कि आप 3 साल के बच्चे को क्लासरूम में बिठा के आप उसको पढ़ा रहे हो कि यू आर फीलिंग हैप्पी, ठीक है. अब बच्चा, आप पढ़ा नहीं सकते हो सिर्फ उसको, आप उसको खेल खेल में बता सकते हो कि आप अच्छा महसूस कर रहे हो इस तरीके से, राइट. अच्छा, अब होता है क्या है कि प्ले टाइम के थ्रू जब ये तीन चीजें डेवलप हो रही हैं, ठीक है, अ, उनसे इनकी डेवलपमेंट होने से फायदा क्या होता है. फायदा क्या होता है, मिसाल के तौर पे बच्चा ब्लॉक्स बिल्ड कर रहा है, ब्लॉक्स की एक गेम है, प्ले टाइम है, हम्म। ठीक है. अब बच्चा सोच रहा है कि अच्छा इसके ऊपर ये ब्लॉक रखना है, ठीक है. अब वो बहुत छोटा बच्चा है, लेट्स से 2 साल का है, 3 साल का है, ठीक है. वो रख रहा है ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, वो सोच भी रहा है, ठीक है. अब जब वो काम कर रहा है, द मोमेंट उसने एक टॉवर क्रिएट कर लिया है, ठीक है, या लेट्स हम्म। से वो बेस के सेकंड वाले पे स्टेप पे है और उसने ठीक से वो कर लिया. द बच्चा लुक्स टुवर्ड्स देयर मदर, अपनी माँ को देखता है कि मामा दिस इज व्हाट आई हैव डन, और मदर उसको कहती है वाओ गुड जॉब वेल डन, लेट्स से, ठीक है. हम्म। सो बच्चा इज गेट फीलिंग वैलिडेटेड, इसको हम कहते हैं कि बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, बच्चे में खुद एतमादी आ रही है, बच्चा जो है वो इनिशिएटिव लेना चाह रहा है. फिर मजीद, अच्छा सिंस मुझे मामा से अप्रिसिएशन मिली है, लेट्स से किसी भी केयर गिवर, कोई भी केयर गिवर है पास, उसने आपको अटेंड किया है, ठीक है. अगर हम्म। आप अप्रिशिएट नहीं भी कर रहे, आप कह रहे हैं गुड जॉब, ये हो गया, बिल्ड अप अनदर वन, ठीक है, इसके साथ का एक और बना ले, इसके टॉप पे एक और बना ले. बच्चा जब इस तरह की पॉजिटिव वैलिडेशन लेता है या देखता है कि मेरे घर वाले इन्वॉल्व है मेरे साथ खेल के अंदर, खेलने में, आप बच्चे को खाली ब्लॉक्स देके बिठा दोगे ना, तो उसकी एक जो टाइम पीरियड है ना कि प्ले का, वो एक चीज लर्न कर रहा है उसके अंदर. लेकिन जब आप उसके साथ उस प्ले में इन्वॉल्व होके इंगेज होके आप इसको करवा रहे हो ना, तो बच्चा आपसे बहुत सिक्योरली अटैच होता है. बच्चे के अटैचमेंट पैटर्न्स होते हैं कि बच्चा बॉन्डिंग कैसे बनाता है लोगों के साथ. हम्म। तो जो बच्चे लॉट ऑफ दिस हैज बीन सेड कि बच्चे की जो
इंसान के जो बड़ा एडल्ट होता है उसके जो बॉन्डिंग या अटैचमेंट या रिलेशनशिप पैटर्न्स होते हैं आगे चल के, उसके बचपन से जो है ना उसके पेरेंट्स के उसके केयर गिवर्स के साथ उसकी अटैचमेंट उसकी कनेक्शन किस तरह की होती है, बहुत चीज डिफाइन करती है उसकी एडल्ट लाइफ में जाके किस तरह से चीजें टर्न आउट करती हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप. So during the playtime when the kid is getting lots of validation, ठीक है, बच्चा अप्रिशिएट हो रहा है, बच्चा चीजें सीख रहा है, कॉन्फिडेंस है, स्टीम बिल्ड हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आ रहा है वो, तो ये सारी चीजें सिक्योर अटैचमेंट भी क्रिएट करती हैं और बच्चे की जो लर्निंग है ना वो 2x हो जाती है, इनहेंस हो जाती है आप कह लें. सो या दिस इज और प्ले टाइम इज एवरीथिंग फॉर द किड. बच्चे की दुनिया है वो. और आपको लगेगा कि बच्चा सिर्फ खेल रहा है, बच्चा सब कुछ उससे सीख रहा होता है. 3 चीजें तो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं. मिसाल की तो सोच है, सोशल कनेक्शन कैसे बनाने हैं, इमोशंस अंडरस्टैंड करने हैं, ठीक है. बच्ची अपनी गुड़िया को या बच्चा अपने किसी भी टॉय को खाना भी खिला रहा है तो दैट इज काइंड ऑफ एन इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है. राइट. सो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं बच्चों के लिए. डेफिनेटली, और यही बात आपने बोली है कि इंडिपेंडेंट प्ले से पहले वो जो फेज होता है उनका, where they have to play with others, especially caregivers, वो ज्यादा important है. And since we all वेरी know कि इंपॉर्टेंट. it's sometimes very hard to find like a specific toy or something like that, आप what do you say कि what are the three easy play activities that parents can do with kids, रोजाना घर के आइटम्स के साथ, like household items के साथ, ताकि उनके लिए भी इजी हो. अच्छा. um, I'll tell you what, this is a thing among mothers and parents या जो भी बंदा बच्चों के साथ करता है. नो मैटर, आप बच्चे के लिए बहुत ज्यादा टॉयज इंपॉर्टेंट है. टॉयज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बच्चे को वन थिंग और दी अदर चाहिए होता है. बट समटाइम्स यू लुक एट द फैक्ट कि बच्चे सारे टॉयज फेंक के घर के आइटम्स के साथ एंगेज होते हैं. एंड जी. दे वुड वांट घर का एवरी सिंगल आइटम जिसके साथ वो खेल रहे होंगे. कुछ नहीं भी मिलेगा तो खाली टिश्यू ही पकड़ लेंगे, ठीक है. हम्म. बट स्पीकिंग फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ मदर्स, ठीक है, अगर आप उनकी बात करें सोलली तो आई हैव सीन के मदर्स का टाइम ज्यादातर लेट्स से किचन में गुजरता है, ठीक है. हम्म. अगर किचन में नहीं है तो ऑफिशियल वर्क में गुजर रहा है, ऑफिशियल में नहीं है तो घर के काम में चल रहा है, ठीक है. हम्म. मैं आपको तीनों डोमेन्स का थोड़ा थोड़ा आइडिया देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ यूर इन द किचन, ठीक है, यूर विद योर किड, बिकॉज आप नाना करते हुए भी यू विल हैव दैट टाइम स्पेन इन द डे जब आपके आपके बच्चा आपके किचन में आपके साथ है. बेशक आपका बच्चा आपने डिफरेंट एक्टिविटीज में भी क्यों ना निकाला बट किचन में आपके साथ है लेट्स से. जस्ट गिव सिंपल बोल स्पून उसको पकड़ा दें और उसको हम्म. बोलें कि यू आर ऑल्सो कुकिंग लाइक मी, ठीक है. आप कोई भी कपड़ा दे दें उसको, कोई भी कपड़ा दे दें, टिश्यू ही दे दें, ठीक है. देयर यू आर गिविंग द किड वन टिश्यू से कि आप जो है ना इट्स क्लीनिंग टाइम, ठीक है. और आपका बच्चा वुड लव टू डू द क्लीनिंग. आई हैव सीन किड्स लव टू क्लीनिंग. तो वो दे वुड लव इवन आप कुछ भी पकड़ा दें, गिव देम अ मोप या कोई भी उनका फ्रेंडली. आई हैव सीन किड्स फ्रेंडली छोटे छोटे वाइपर्स हैं जो आजकल द किड्स वुड यूज इट. तो किचन हाउस होल्ड आइटम्स के साथ दे कैन यू कैन एंगेज देम इन द एक्टिविटी. इसी तरह से देर इज दिस वन एक्टिविटी जो हमने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा करते हुए देखा है घरों के अंदर. दैट इज लेट्स से टिश्यू रोल है, ठीक है. आपने जो उसके बीच के अंदर देयर इज अ कार्डबोर्ड, आई थिंक सो दिस इज वन ऑफ एग्जांपल ऑफ दैट कि इसके अंदर जो ये कार्डबोर्ड होता है, आप हम्म. इसी को टेप अप करके किसी भी वॉल के साथ, ठीक है, लेट्स से आपने इसको टेप अप कर दिया 2-3 रोल्स को का जो अंदर से कार्डबोर्ड होता है. और हम्म. आप बच्चे को कहोगे कि ऊपर से बॉल्स फेंके, वो उसमें भी बहुत खुश होंगे. वो कभी टेप्स उतार रहे होंगे, वो कभी इसको फिक्स कर रहे होंगे, देन दे आर गोइंग वेरी नेचुरली प्लेइंग विद दैट और वो इंगेज रहेंगे, ठीक है. तो इस हम्म. तरह की चीजें टिश्यू रोल्स के साथ कर लिया आपने. अगर आप कोई भी ऑफिशियल काम कर रहे हैं फॉर मदर्स, वर्किंग मदर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. घर पे बच्चे को जब आप इफ यू आर ऑन योर स्क्रीन लैपटॉप पे हैं किसी पेपर पेन के साथ हैं, बच्चे को भी एक पेपर पेन दें. उनको बोले नो नो सिट डाउन विद मी एंड प्लीज आप बच्चे के साथ ना कम्युनिकेट करें. टॉक टू योर किड्स एंड टेल देम एवरीथिंग, ठीक है. उनको हर बात बताएं कि अभी हम ये करने वाले हैं, अभी आप ये करेंगे, बिकॉज बच्चों को सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है. हम्म. बच्चों को खेल के थ्रू, और आप उनको ऐसे नहीं कर सकते हो कि आई एम, आप जितना मर्जी कहते रहो आई एम वर्किंग, आप थोड़ी देर पेशेंट होके बैठ जाओ. नो, आपको उनको प्ले टाइम में लेकर आना होता है, ठीक है. ओके, वी बोथ आर वर्किंग, आपने कहा ना हम दोनों काम कर रहे हैं, आप भी अपने करो. तो बच्चे के लिए वो प्ले टाइम ही है बट वो सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट है. सो लाइक टिश्यू रोल्स है, पेपर पेन दे दिया, किचन के बोल्स दे दिए, किचन के कोई आइटम दे दिया. सो या दिस इज
घर में हर चीज में आप बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हो अपने साथ। अगर आप कपड़े भी तय कर रहे हो, लेट्स से अब बच्चे को 2-3 कपड़े पकड़ाओ, बोलो यू हैव टू डू दिस, फोल्ड इट। थोड़ा सा बच्चे मैस मचाते हैं ऑफ कोर्स, और प्रैक्टिकली हर चीज हर बच्चे पे काम नहीं भी करती है, ठीक है। आप ना ना करते हुए भी बच्चा ने आपको तंग करना ही होता है, फिर भी इवन इफ यू हैव प्रोवाइडेड देम ऑल द थिंग्स। सो दीज आर नॉट लाइक ऐसे कोई चार्म, मैजिक चार्म नहीं है इसके अंदर कि आप ये वाला एक्टिविटी करोगे तो बच्चा विल कंफर्म एंड द किड इज गोना बी वेरी ऑल सपोर्टिव एंड इन्वॉल्व विद यू। मे बी बच्चे के उस टाइम कोई और नीड हो। सो या, पेरेंटिंग इज नो डाउट इट हैज लॉट ऑफ डायमेंशंस एंड इट इज डिफिकल्ट, बट these are all the things, these are your gadgets जो आप यूज कर सकते हैं to conquer this project, let's say. No, definitely. Jab normal toys don't work out, you have to bring in the household items to keep the kids busy and involve them with yourself. Could you show us Yes. an example or a demonstration of an effective play-based learning activity? Mhm. अच्छा, so in that play based learning के लिए ना, so there are a lot of concepts साइकोलॉजी के अंदर बेसिकली जो कि आप देखते हो कि बच्चा लर्न कर रहा होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट में आप सुनते हो, ठीक है। इस चीज में ना आई वुड लाइक टू स्पेसिफिकली हाईलाइट कि हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस का, ठीक है। छोटे बच्चों की हम बात करें ज्यादातर, तो उसमें होता क्या है कि जो कह लें कि 6 से 8 माह का बच्चा है ना, आप उसके साथ लेट्स से पीका बुकी जो गेम खेलते हैं, ठीक है। इन दैट रिगार्ड्स यू वुड सी के बच्चे, किड्स लव दैट, ठीक है। तो इन दैट रिगार्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है ना वो स्टैंड करती है पीकाबू में इस तरह से कि ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अबाउट दी अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चे को ये अंडरस्टैंडिंग है कि लेट्स से ये ऑब्जेक्ट अभी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे और ये मेरी नजर से गायब हो गया है, ठीक Hmm. है। दिस मीन्स कि ये जो भी ऑब्जेक्ट है ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ मेरी नजर से गायब हुआ है बट इट इज स्टिल एग्जिस्टिंग। ये अंडरस्टैंडिंग बच्चों के अंदर होना इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। बच्चे को इस चीज का आइडिया हो कि जब आपके सामने एक चीज नहीं है तो वो तब भी एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गई है, ठीक है। अब इसको अगर आप बच्चे में आप चाह रहे हैं कि ये चीज जल्द से जल्द आए और बच्चा स्मार्ट इनफ हो, ठीक है। आई हैव सीन पेरेंट्स को होता है कि हमारा बच्चा जल्दी जल्दी सब कुछ सीख ले, तो और आप उसको बहुत ज्यादा वो भी नहीं करवाना चाह रहे, को बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली आप उसको एजुकेशनल वे में नहीं करवाना चाह रहे कि देखें आप वो चीज है वो चीज नहीं है, जस्ट इंट्रोड्यूस कोई भी गेम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट हैव दिस टॉय विद मी राइट नाउ, ठीक है। Hmm. दिस इज बेसिकली द डायनो पजल, ठीक है। अब इसमें क्या है कि लेट्स से इट्स काइंड ऑफ अ हाइड एंड सीक बट पीकाबू गेम, लेट्स से। अब बच्चा क्या है कि इसमें वी हैव डिफरेंट डायनासोर्स, हर कलर के साथ उसके अंदर डिफरेंट डायनासोर है। लेट्स से इट्स अ लाइट ब्लू कलर, तो उसके नीचे एक लाइट ब्लू डायनासोर है, ठीक है। अब दिस इज अ डार्क ब्लू, उसके नीचे डार्क ब्लू। अब आप क्या कर सकते हो कि यू कैन लाइक शिफ्ट देयर प्लेसेस, ठीक है। Hmm. अच्छा, ब्लू के साथ थोड़ा सा हो जाएगा, लेट्स से बच्चे रेड एंड ब्लू कलर को बहुत ज्यादा इनिशियली रजिस्टर करते हैं, जी. ठीक है। तो आपने जो रेड वाला डायनासोर है, ठीक है, आपने वो हटा दिया है, ठीक है, एंड मे बी आप इसको ब्लू के साथ स्वैप कर रहे हो, ठीक है। आपने ब्लू यहाँ पे रख दिया है और आप बच्चे को कह रहे हो आई वॉन्ट कि आप सी रेड डायनासोर किधर है, ठीक है। या फिर लेट्स से आप ऑल टुगेदर, इसमें आप डिफरेंट तरीके से प्ले कर सकते हो। ऑल टुगेदर आप इसको हटा भी सकते हो, Hmm. टोटली आउट ऑफ द सीन है, ठीक है। एंड द किड वुड हैव दैट रियलाइजेशन, ओह इट्स नॉट देयर। लेकिन अगर लेट्स से आपने स्वैप भी कर दिया, ठीक है। अब आपने ये हटाया ना, बच्चे ने, आपने कहा ओके फाइन, गिव मी द रेड डायनासोर, और बच्चे ने रेड वाला हटाया है और इससे नीचे देखा है कि ब्लू डायनासोर पड़ा हुआ है। अगर बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो गई है खेल खेल के, लेट्स से, या आपने लेट्स सी यू हैव टू सी कि उसके अंदर है, तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चा विल स्टार्ट पिकिंग अप सारे, वो ढूंढने की कोशिश करेगा कि नहीं रेड डायनासोर एग्जिस्ट करता है लेकिन वो किधर है, अब आई हैव टू सर्च अप फॉर इट। बच्चा ढूंढ रहा है, मींस बच्चे को पता है कि अच्छा यहाँ पे एक चीज प्रेजेंट थी, अभी नहीं है लेकिन वो एग्जिस्ट कर रही है।
लेकिन अगर बच्चा कह रहा है कि इस पे है कि नहीं ये है, दिस इज अभी अब हमने निकाल दिया है, ओके मामा दिस, आप उसको कह रहे हो नो गिव मी द रेड डायनासोर, उसको इस चीज की हम्म। अंडरस्टैंडिंग है कि आप बोल क्या रहे हो, ठीक है। लेकिन वो आपको वो ढूंढने की स्ट्रगल नहीं कर रहा है, ठीक है। या हम्म। फिर बच्चा कह रहा है नहीं है रेड वाला है ही नहीं, नो मामा इट्स नॉट देयर। या फिर बच्चा आपसे कह रहा है कि नो रेड नो डायनासोर वट एवर इन देयर लैंग्वेज, ठीक है। अ, अगर वो आपसे ये कह रहे कि नहीं है, तो मीन्स बच्चे को ये है कि यार इट्स नॉट ओवर देयर। अगर हम्म। बच्चे के अंदर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है कि वो अच्छा, अब दिस इज नॉट लाइक कि इस गेम की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है तो बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस है कि नहीं है, बट दिस इज काइंड ऑफ एन एक्टिविटी, ठीक है, जिसमें आप बहुत छोटे बच्चों के साथ, लेट्स से वो बच्चे जो लेट्स से वो बच्चे जो अभी एजुकेशनल चीजों पे भी नहीं आए हुए हैं, ठीक है, हम्म। जिनको आप अभी ए की साउंड बी सी डी भी नहीं सिखा रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग, उनको आप इससे करें। एंड देयर आर अदर एक्टिविटीज टू इसके बारे में जो मैं मेंशन कर सकती हूँ, जो बच्चों की डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं उसको जरूर हाईलाइट करना चाहूंगी, बट लेट्स जैसे हमें कॉन्वर्सेशन प्रोग्रेस होती है, बट फिलहाल के लिए दिस इज लाइक अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो बच्चों के अंदर अभी डेवलप हो रहा है। सो आपने पूछा कि प्ले बेस्ड लर्निंग के लिए, तो दिस इज अ प्ले बेस्ड लर्निंग हम्म। एक्टिविटी, अगर आप चाह रहे हो बच्चे के साथ वो इनहेंस हो। अच्छा, अब बच्चे के अंदर वो एबिलिटी है, बच्चा वो चीजें फाइंड आउट कर सकता है। अब आप चाह रहे हो कि वो शार्पन हो, क्योंकि एबिलिटीज पॉलिश करना इज ऑल अबाउट रिटेनिंग योर एबिलिटीज, राइट। Yes. सो इफ यू वांट टू पॉलिश देम अप, तो आप उसको इसी तरह के मजीद टॉयज और एक्टिविटीज में इंगेज कर सकते हो। सो यस। Our next question to you is what are three quick and easy swaps that parents can make today to reduce screen time without tantrums? Without tantrums is something that that is questionable. No, actually tantrums तो आएंगे, ठीक है। आप बच्चे को छोटी सी भी चीज, बच्चे की किसी भी चीज के लिए आप मना करोगे तो टैंट्रम इज वेरी कॉमन, ठीक है। बट विथ Mhm. टाइम ऑफ कोर्स थोड़े रिड्यूस भी हो जाएंगे। बट ये है कि आई थिंक सो कि एनीथिंग एट ऑल, ठीक है। अब इनिशियली इट विल टेक अप टाइम, क्योंकि लेट्स से डिपेंड करता है कि आपके बच्चे को स्क्रीन की आदत कितनी है। अगर आपके बच्चे को Mm. स्क्रीन की काफी ज्यादा आदत है, काफी आवर्स उसके स्क्रीन टाइम में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इट विल टेक अप टाइम, ठीक है। और उसमें आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। आई हैव सीन कि ये है कि अच्छा बच्चा खेल की तरफ नहीं आ रहा, खेलने की तरफ नहीं आ रहा, टांग आके दे दिया वापस स्क्रीन। सो Mhm. इसमें बच्चे की पेशेंस या बच्चे की उससे ज्यादा आपकी पेशेंस मैटर करती है कि आपकी कितने अंदर है कि आप कितना अपने सरवाइव कर सकते हैं अपने बच्चे के टैंट्रम को, अपने बच्चे की जिद को। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स इस मामले के अंदर वो पेरेंट्स को हम जरा ज्यादा उस पे पेरेंट्स पे काम ज्यादा करने की समटाइम जरूरत होती है। सो स्क्रीन टाइम से स्वैप करने के लिए एनीथिंग वुड हेल्प। लेट्स से आपने बच्चे को, अच्छा आई हैव आल्सो सीन कि बच्चे को ना फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा अपील करती है एज कंपेयर जी। टू लेट्स से कुछ एक जगह पे बैठ के करने का हो, ठीक है। Mhm. जब बच्चा फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी कर लेते हैं ना, उसके बाद उसके अंदर एनर्जी इस चीज की होती है कि वो बैठ के खेलेगा, ठीक है। तो आप एनीथिंग लाइक दैट मे बी आप ये कर सकते हो। एक कार्डबोर्ड बॉक्स दी है, ठीक है, और आप उसको जैसे कार्टन होता है, ठीक है, जिसे हम कार्टन कहते हैं, लेट्स से आपने वो दे दिया एंड आप बच्चे को उसको कुछ भी कन्वर्ट करवा लो, उसको कार बना लो, उसको बोलो दिस इज अ स्पेस शिप, अब ये एरोप्लेन है, कुछ भी, अब हम इसको उड़ाएंगे, ठीक है। Mhm. मार्कर्स पकड़े, बच्चे के साथ बैठ के कार्डबोर्ड बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी दो आंखें बना दें एंड यू से इट्स अ कार, अब चलाएं इसको। कार अपनी लेकर आए बेटे यहाँ से वहां, तो किड इज गोना इन्वॉल्व। एक कार्डबोर्ड बॉक्स है, आप उसको अच्छे से आराम से बच्चे को वो दे दिया। अदर देन दिस आई हैव सीन, आपका बच्चा मेल है या फीमेल है, ठीक है, आई हैव सीन के बच्चे जो हैं वो किचन आइटम्स में बहुत इंटरेस्टेड है आजकल। Mhm. आजकल की जो जनरेशन है दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन किचन आइटम्स बिकॉज दे कप्स है ना, ठीक है, स्टैकिंग कप्स हैं, लेट्स से। Mhm. अगर आप वही दे रहे हो, अगर आप वो अच्छा वो टॉय की फॉर्म में भी मिल जाते हैं या आपके अपने कप्स भी हैं, घर के कप्स जरा आप माओ को होता है कि टूटे ना, बट लेट्स से अगर प्लास्टिक के कप्स हैं, डिस्पोजेबल ग्लासेस हैं, अगर आप वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक करवाना शुरू कर दो, बच्चों को बोलो लेट्स मेक अप अ टॉवर, ठीक है, बच्चे ने वो टॉवर करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब देखिए दीज आर थिंग्स जिसके अंदर बच्चा बहुत ज्यादा खुद से इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। अगर आप बच्चा इस उसकी एनर्जी भी लग रही है और लेट्स से उसका इंटरेस्ट भी है। अब Mhm. द थिंग इज के
देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज, लेकिन आप वो सारी एक्टिविटी बच्चे को प्रैक्टिस करवा रहे होगे ना, बच्चा उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी होगा। आप उसको स्क्रीन ला के दोगे, वो फौरन अपनी एक्टिविटी छोड़कर स्क्रीन की तरफ आ जाएगा। सो हम्म, दिस इज बिकॉज कि स्क्रीन इज वेरी एडिक्टिव एंड इट इज वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है। बड़ों के लिए तो, बच्चों के लिए तो कह लें कि हर चीज एक एक्स्ट्रा लेवल पे होती है। सो बिल्कुल दी एडिक्शन स्वॉट्स लेवल पे दैट है। यू आर टॉकिंग अबाउट, सॉरी सॉरी सर, व्हाट? मैं कह रही हूँ बिल्कुल एडिक्शन लेवल पे बच्चों के लिए तो स्क्रीन्स है। यस यस, फॉर किड्स इट इज बिकमिंग पैटर्न, वो पैटर्न बन जाता है बच्चों का। हम्म। खैर होता हम एडल्ट्स का भी है, बट सिंस हमारे पास और डिफरेंट काम भी होते हैं करने के लिए ऑन द स्क्रीन, तो हम वो जस्टिफाई कर लेते हैं। अदरवाइज वी ऑल्सो हैव दोस पैटर्न्स। बट अगर हम बच्चों की बात करें ना, तो जो स्वैप की हम बात कर रहे हैं, तो स्क्रीन टाइम से वापस स्वैप करने का मकसद ये नहीं कि आपका बच्चा भी एक्टिविटी में वुड लव डूइंग इट और वो इसी में लगा रहेगा, ठीक है। बट उसका मतलब ये है कि आप स्क्रीन टाइम हटा रहे हैं ना, तो पेरेंट्स कहते हैं फिर हम क्या करें बच्चे के साथ, खिलौनों के साथ नहीं खेल रहा, ये नहीं कर रहा। बच्चे को वही बात है, सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है, ठीक है। हम्म। अब आप उसको कार्डबोर्ड बॉक्स बना लिया, उसको बोला गाड़ी चलाने, गाड़ी बना दिया उसने, ठीक है। अगर बच्चियां हैं तो आप उनको बोले सॉक्स अरेंज कर दें, आप बोलें कि अच्छा लेट्स से कोई बच्ची बच्ची एक्स, लेट्स से उस बच्ची का नाम एक्स है, दिस इज एक्स चाइल्ड, तो आप उनको बोल रहे हैं कि चाइल्ड नंबर ए का जो है, लेट्स से उनके सॉक्स के पपेट्स बना लिए उन्होंने, ठीक है। हम्म। सॉक और हैंड टॉक कर रहे हैं, हम तो हाथों से बात कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने सॉक्स चढ़ा लिया और मेरा तो पपेट है, मेरा पपेट बात नहीं करता, आपको पपेट बात करता है। एंड आई किड यू नॉट, 4-5 साल का बच्चा जो आपको लगता है ना कि नहीं आजकल के बच्चे बहुत तेज है, वो भी ऐसा करेंगे। बच्चे आर माशाल्लाह वेरी स्मार्ट, बच्चे आर वेरी वेरी इन्फॉर्म्ड आजकल के। एंड बच्चे आर वेरी, दे वेरी ओपिनियनेटेड कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बट दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड नॉट। हम्म। बट स्टिल किड्स आर किड्स। बच्चे आपकी बातों में आ जाते हैं, आई सीन, आपको थोड़ा सा उनको उनके हिसाब से जरा सी उनकी बात सुनी, थोड़ी ज्यादा अपनी सुनाई, और आप वो आपकी बात में आ जाएंगे, तो दे विल इवेंचुअली प्ले विद यू। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास अगर एनिमल्स हैं छोटे छोटे घर पे, कोई डाइनो डाइनो एनिमल्स हैं, कोई और कुछ और चीज है, आप उनको घर पे छुपा दें, ठीक है। बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, आपने घर में डिफरेंट जगहों पे छुपा दी। अब आए सर्च अप करते हैं, हाइड एंड सीक है सिंपल। बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा कि आपने, अच्छा जी हाइड एंड सीक, उनके साथ उनके टॉयज और पजल्स वट एवर इट इज वो आप ढूंढने में, यू गाइज आर स्पेंडिंग टाइम इन दैट। एंड नाउ आई नो कि एज मदर्स आपके पास कोई फुल टाइम बंदा नहीं हो सकता, लेट्स से जिनके सिंगल बच्चे हैं, ठीक है, अगर इकलौता बच्चा है, तो आप दिन का कुछ टाइम ऐसे कर सकते हैं, और यू कैन स्टार्ट अप एन एक्टिविटी विद द किड। 5 मिनट की बात है, सो हाँ, इट टेक्स लिटरली 5 मिनट्स। आपने क्या किया कि यू आर, आपने वो चीजें 5 मिनट में छुपाई हैं अच्छी तरह घर के अंदर, सही है। और आपने 2-3 टॉयज जो है वो बच्चे के साथ ढूंढ ली है, ठीक है। और उसके बाद आप किचन में चले गए, यू आर डूइंग योर वर्क, या आप अपने लैपटॉप पे यू डूइंग योर वर्क, और आप बच्चे से कह रहे हो फाइन फाइन यस मामा इज कमिंग, आप देखो देखो आप ढूंढो, तो आपने 2-3 टॉयज बच्चे के साथ ढूंढ लिया, उसके बाद बच्चा इंडिपेंडेंटली वो कर लेगा। लेकिन हम्म। इनिशियली किक स्टार्ट होता है ना, दैट इज रिक्वायर्ड टू द किड्स, तो वो आपने लत से कर लिया बच्चे के साथ। सो आपने बच्चे के साथ एनिमल्स ढूंढ लिया, आपने बच्चे को कार्ड बॉक्स दे दिया, बच्चे उसको गाड़ी के साथ चला रहा है, आप सॉक्स के साथ पपेट्स बनाने, किचन आइटम्स तो बेस्ट चीज है, किचन आइटम्स में बच्चे शेफ बना के आप उनको इन्वॉल्व कर लें, ठीक है। प्रिटेंड प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिटेंड प्ले मीन्स के बच्चे खुद एक रोल में आ जाए, ठीक है। लेट्स से आई एम द मॉमी टुडे, आज मैं मामा हूँ और आज मैं अपना खाना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो वाले रोल के अंदर यू कैन, आप बच्चे बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। बच्चे को अगर आप, बच्चों को आप बोले कि आज आपने क्लीनिंग करनी है, तो बच्चे आपके साथ, आई कैड यू नॉट, लिटरली क्लीनिंग भी करेंगे, हम्म। ठीक है। इस तरह की किचन वाली आइटम्स हो गए, एंड मे बी यू कैन लाइक थोड़ी सी आप क्रॉलिंग वगैरह कर लें कि आज वी विल ट्राई टू क्रॉल लाइक, हम आज हम टॉर्टाइज वॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो हम्म। आप थोड़ा कभी घर के एक सर्टेन हिस्से से जा रहे हो तो बच्चे के साथ हमने थोड़ी सी सा काम कर लिया। सो प्ले बेस्ड एक्टिविटीज काफी बच्चों को हेल्प आउट करती हैं, थोड़ा थोड़ा आप स्टार्टअप करो। अच्छा, इसके लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज तो है जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, दैट इज के बच्चे को ना आप कोशिश करो कि उसके इन्वायरमेंट में वो चीज हो ही ना, ट्रिगर हो हम्म। ही ना। अब आई हैव सीन विद माई किड के उसको जब मेरा फोन नजर आता है तो ही वुड से
कि इस पे कुछ लगता है तो ये मुझको लगा दे। तो अब थोड़ा, आई नो दिस इज प्रैक्टिकली नॉट दैट मच पॉसिबल, बहुत सारी चीजें, हर हाउस होल्ड का एक डिफरेंट सिनेरियो है। हम्म वट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट डज नॉट स्टैंड ट्रू फॉर ऑल ऑफ द हाउस होल्ड, बट इट डज स्टैंड ट्रू फॉर ऑल ऑफ द किड्स। बच्चों की डिफरेंट मुख्तलिफ नेचर होने के बावजूद आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दिस थिंग कि बच्चा इवेंचुअली बच्चा है, हम्म वो बहुत सारी चीजें कर लेगा। तो आप डिफरेंट हाउस होल्ड के अकॉर्डिंगली आप इसको थोड़ा सा कर सकते हो कि बच्चे की इन्वायरमेंट में ना वो ट्रिगर्स ना हो, ठीक है। हम्म कि बच्चा आईपैड सामने पड़ा हुआ है, छोटा भाई देख रहा है, अब बड़ा भाई देख रहा है, तो छोटे भाई को आप बोल रहे हो आपने नहीं देखना, दैट इज अ ट्रिगर। आप हम्म कोशिश करो ये एलिमिनेट हो। सही है, तो इस तरह की चीजें हैं जो आप अगर मैनेज करो तो इट विल ऑफ कोर्स रिड्यूस स्क्रीन टाइम। वेल, सिंस वी नो हर किसी के पास डिवाइस है, अगर मदर्स नहीं देती तो फादर्स दे देते हैं बच्चों को सूद करने के लिए, उनकी थोड़ी जिद बन जाती है। डू यू थिंक देयर इज अ गुड स्क्रीन टाइम हैबिट, और या बिल्कुल ही स्क्रीन अवॉइड करनी चाहिए बच्चों को? अच्छा, सो स्क्रीन टाइम के ऊपर जिस तरह से आपने बात की कि ट्रिगर, जिस समय अभी ट्रिगर्स की बात करी थी, हम्म आपने कहा कि ट्रिगर तो कहीं ना कहीं मिल जाता है। अम, हम स्क्रीन टाइम पे भी बात करेंगे, लेकिन इसमें मैं एक चीज लाजमी यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी टू ऑल द पीपल लिसनिंग टू अस कि पेरेंटिंग इज नॉट वन पर्सन जॉब, ठीक है। आई वाज रीडिंग इट समवेयर पिछले दिनों कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ होल चाइल्ड, ठीक है। इट और डज। कहा जाता है कि दुनिया में हर किस्म का बच्चा पालना आसान है, डिफरेंट स्पीशीज है, लेकिन इंसान का बच्चा इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो इट्स नॉट वन पर्सन जॉब, इट्स अ कलेक्टिव टीम एफर्ट, चाहे दो लोगों की है, पेरेंट्स ही है, टीम है, दे आर अ टीम, ठीक है। आपको सेम पेज पे होना बहुत जरूरी है। आई हैव लेजिट लिसन टू पीपल सेइंग कि हम नहीं देते तो कोई और बंदा घर में दे देता है। मेक अ स्ट्रिक्ट बाउंड्री, स्ट्रिक्ट बाउंड्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ वन पर्सन इज सेइंग नो टू द स्क्रीन, वो बच्चा किसी और के पास जा रहा है, उसको भी नो ही कहना है। और अगर बच्चा नहीं कह रहा या बच्चा लेट्स से द अदर पर्सन इज थोड़ा सा लीव है कि अच्छा कोई बात नहीं दे दें, थोड़ी सी लीनियंसी शो कर दिया है, तो ये हार्मफुल होता है, ये ज्यादा हार्मफुल होता है एज कम्पेयर टू कि आप टोटली दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ठीक है। हम्म अच्छा, अब बात की जाए गुड स्क्रीन टाइम बैड स्क्रीन टाइम की, तो बाय रूल एंड बाय लॉजिक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्क्रीन टाइम ऑल टुगेदर फॉर द इनिशियल 5 years तो आपका हो ही ना, ठीक है। हम्म बट प्रैक्टिकली आज के जमाने में स्पीकिंग के बच्चा, लेट्स से आप भी फोन पे कुछ देख रहे हो और बच्चा इज, आप सुला रहे हो, बच्चा आपके पास लेटा हुआ भी है, बैठ के अपने टॉयज में भी लगा हुआ है, तो वो इवेंचुअली उसकी नजर आपकी स्क्रीन पे पड़ रही है, वो थोड़ा सा फिर आप पे लीन ऑन कर रहा है और फिर वो स्क्रीन देख रहे हैं, ठीक है। हम्म सो स्क्रीन टाइम ऑल टुगेदर होना नहीं चाहिए, बट लेट्स से अगर आपको देना पड़ भी गया है या आप दे भी रहे हैं, ठीक है, तो व्हाट्स इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखो कि क्या कंटेंट बच्चा देख रहा है। हम्म कंटेंट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। बहुत हाई हाई बीट अप म्यूजिक साउंड्स, उस तरह की चीजें, बहुत ग्राफिक्स, बहुत एक्स्ट्रा कलरफुल ग्राफिक्स, जो एक्चुअली होता क्या है, अच्छा, एक्स्ट्रा कलरफुल ग्राफिक्स, बहुत हाई बीट साउंड एंड द पेस ऑफ द वीडियो, कि हम्म कितनी जल्दी वीडियो चेंज हो रही है, ये सब चीजें बेसिकली, ये तीन चीजें जो मैंने मेंशन की हैं, ये करती क्या है, आप देखिए, आप अपने कान से आंखों से, ठीक है, आप रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन। एक बच्चा है, आप अपने आप को एक बच्चे की तरह, बच्चा एक इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, ठीक है। हम्म अब वो इन्फॉर्मेशन जो रिसीव हो रही है वो उसको स्टिमुलेशन प्रोवाइड करती है, कह ले कि आम अल्फाज में आप कहें तो कोई ना कोई उसका असर होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे बच्चा म्यूजिक सुन रहा है तो उसका क्या असर है, बच्चा इज गेटिंग, लेट्स से थोड़ा सा स्टिमुलेट हो रहा है, थोड़ा सा बच्चा प्लेयर इफेक्ट आ रहा है, बच्चा एंजॉय कर रहा है, बच्चा मूव कर रहा है, ठीक है, ये उसका इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। हम्म इसी तरह से ना स्क्रीन का इटसेल्फ, कि क्या वो आपकी आंखों पे जो रेडिएशंस है वो तो मैटर करती हैं, लेकिन हम्म जो कंटेंट है वो, उसमें म्यूजिक कैसा यूज हो रहा है, उसके अंदर ग्राफिक्स कितने स्ट्रॉन्ग है, कितनी जल्दी चेंज हो रहे हैं, कलर क्या है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो उसके अंदर आई वुड रिकमेंड एंड सजेस्ट कि अगर आप टाइम स्क्रीन टाइम दे भी रहे हैं तो कोशिश करें कि एजुकेशनल स्क्रीन टाइम हो, जिसके अंदर एजुकेशन बेस्ड वीडियोस हो, ठीक है। हम्म एंड इवन दैट बी विद दैट, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है एजुकेशनल, एक तो कंटेंट हो, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक होता है पैसिव वॉचिंग, स्क्रीन हम्म लगी हुई है सारा दिन बच्चा देख रहा है, दैट्स वेरी हार्मफुल, ठीक है। हम्म और पैसिव वॉचिंग नहीं होनी चाहिए, एक्टिव वॉचिंग होनी चाहिए कि बच्चे को पता हो। जो दूसरा पॉइंट है कि
बच्चे को पता हो कि मैं 10 मिनट के लिए देख रहा हूँ, मैं 15 मिनट। अब छोटा बच्चा, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है 10 मिनट कितने हैं, 15 मिनट कितने हैं। अब उसको हम्म कह सकते हो वन वीडियो ओनली, वन वीडियो ओनली, ठीक है, या वन कार्टून ओनली, ठीक है। हम्म अभी मामा, अभी अब बच्चा नहीं, वन भी नहीं समझ रहा है ना, वन वीडियो, आप उसको कह सकते हो मामा आपको ये दे रही है, बट मामा विल टेक इट बैक, ठीक है। हम्म अभी आप ये देख लो, फिर गिव इट टू मामा, गिव इट बैक टू मामा, ट्रस्ट मी द किड इज गोना अंडरस्टैंड के अच्छा मामा इसको वापस लेने की बात कर रही हैं, ठीक है। उसको ना एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी कि स्क्रीन टाइम मेरा खत्म भी होगा। So, good screen time is it's there is no such thing as good screen time, but let's say if you are giving up screen time तो आपके बच्चे का ज्यादा नुकसान ना हो, और let's say कि आप बच्चे को कुछ सिखाना भी चाह रहे हो, तो it's important कि आप उसमें educational content हो, let's say ABC की videos हैं, color words opposites की videos हैं, color का कोई content है, and with हम्म that आप कोशिश करें कि वो वाली videos जिसमें बहुत जल्दी जल्दी content change ना हो रहा हो, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप थोड़ा सा वीडियो में ठहराओ हो, जिस बंदे ने वीडियो बनाई हुई है वो शूट इस तरह से हो कि बच्चा थिंक कर सके। लेट्स से इमोशन सीख रहा है ना बच्चा, वीडियो से हैप्पी का फिगर चल रहा है और साथ में लिखा हुआ है हैप्पी, अब उस पर बात भी हो रही है। आप है, अब लेट्स से अब इंग्लिश में ही है ज्यादातर वीडियोस, ठीक है। सो डू यू फील हैप्पी टुडे, कुछ इस हम्म तरह का कंटेंट, और अदर देन वी आर हैप्पी वी आर सैड, वो कंटिन्यूस एक कंटेंट चल रहा है, उस तरह का नहीं, राइट ठीक है। इस सब के साथ अगर आप स्क्रीन टाइम और कंटेंट वगैरह जितना भी आपने मॉनिटर कर लिया, एवरीथिंग इज बीइंग डन, आप बच्चे को कोशिश करें कि उसके बाद ना आप उसको फिजिकली भी उस चीज को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। स्क्रीन से जो बच्चा सीख रहा है ना उसको फिजिकली इम्प्लीमेंट करें। मिसाल के तौर पे अगर बच्चे ने अब ब्लू कलर स्क्रीन पे देख रहा है तो आप उसको एनवायरनमेंट में बाद में ब्लू भी दिखाएं। इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है स्क्रीन टाइम, आप बच्चे को अगर दे भी रहे हैं ना, ठीक है, तो हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स भी यही कहते हैं आपको कि अगर आपने स्क्रीन टाइम दे भी दिया है तो आप बच्चे को इंगेज रखें इन दैट स्क्रीन टाइम। एक्टिव स्क्रीन टाइम हो कि बच्चे को पता हो कि मैं देख क्या रहा हूँ, कितनी देर के लिए देख रहा हूँ, और बच्चे को अंडरस्टैंडिंग हो कि अच्छा मेरी अभी ये एजुकेशनल स्क्रीन टाइम चल रहा है, ठीक है, और यही हम्म चलेगा मेरा। उसके साथ साथ आप कम्युनिकेट भी कर रहे हो बच्चे से, आप क्या देख रहे हो, मिसाल के तौर पे आप क्या देख रहे हो, अच्छा ये आपका, लेट्स इवन अगर आपने कभी कार्टून भी लगा दिए, टॉक टू देम अबाउट दोस कार्टून्स, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि बच्चा वोकल रहेगा, बच्चा की स्पीच भी साथ साथ रहेगी, ठीक है। जी सो इट्स, और बच्चा आप जो वो देख रहा है ना वो उसको एज इट इज अब्सॉर्ब नहीं कर रहा है, सिर्फ आप उससे बात कर रहे हो, यू आर मेकिंग सेंस आउट ऑफ इट, तो वो कॉन्वर्सेशन बन रही है, तो बच्चा वो भी रजिस्टर करने की कोशिश करेगा। तो दीज आर अ फ्यू टिप्स, एंड आई नो स्क्रीन लाना करते हुए भी कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सो जस्ट ट्राई कि ये वाले पैरामीटर्स आप पूरे कर सकते हो। understandable. If we circle back to our point where we were discussing that not all children are the same and every children has different developmental needs and milestones, how do you think parents can adapt their style of play or just adapt play to support children with different developmental needs? अच्छा, बच्चों की ना डिफरेंट डेवलपमेंटल नीड्स की अगर हम बात करें, ठीक है, लेट्स से डिफरेंटली एबल्ड बच्चों की अगर हम सिर्फ इसमें बात कर लें, ठीक है। अ, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था कि हमने बच्चे की दो चीजें होती हैं कि बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा, और एक तो ये कि बच्चे के अंदर एबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है। Hmm. तो इन दैट रिगार्ड आई थिंक सो कि हमने ना बच्चे का ये देखना है कि बच्चे की सोशल नीड क्या है, इमोशनल नीड क्या है। बच्चे को मे बी बहुत बड़े ग्रुप में बैठ के खेलना नहीं पसंद है, इट्स फाइन, आप छोटा ग्रुप के साथ बिठा के खिला दें, ठीक है। ये एक छोटी सी Hmm. एग्जाम्पल है, ठीक है। बट होलिस्टिकली स्पीकिंग, दिस व्हाट मैटर्स इन दिस इज कि आपने जो प्ले टाइम है ना अडेप्ट करना है बच्चे की एबिलिटीज के हिसाब से। हाईली इंपॉर्टेंट कि डिफरेंटली एबल्ड पॉपुलेशन के अंदर लेट्स से अगर हमारे बच्चे हैं, अपने बच्चों की लेट्स से छोटी सी फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, बेसिकली छोटी जो स्किल्स होती हैं इंसान की डेवलपमेंट के अंदर, फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर जो छोटे छोटे स्किल्स होते हैं, मिसाल के तौर पे लिखना, ठीक है। जैसे लिखना है एक छोटी स्किल है, फाइन मोटर स्किल है, उसमें आपके फाइन मोटर्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी स्किल्स उसके कंपैरिजन में आती है ग्रॉस मोटर स्किल, जैसे बड़ी बड़ी स्किल्स हैं जिसमें ग्रॉस मोटर्स आपके यूज हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल चलना है, ठीक है। तो Hmm. दैट इज अ ग्रॉस मोटर स्किल। तो उसके अंदर व्हाट यू कैन डू इज कि फाइन मोटर स्किल्स अगर बच्चे की इफेक्ट हो रही है, मिसाल लाइक इफेक्टेड है बिकॉज ऑफ वट एवर उनकी डिफरेंट एबिलिटी है, Hmm. उनकी फाइन मोटर स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, तो अगर आप मिसाल के तौर पर बच्चे के लिए ब्लॉक्स ले रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप उसके लिए थोड़े बड़े ब्लॉक्स ले लें, उसके लिए ग्रैप
ग्रास्प करना आसान हो, उसके लिए उसकी ग्रिपिंग आसान हो। पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो मे बी एक वो पेंसिल एड्स मिलते हैं, ठीक है। अगर आप बच्चे को राइटिंग पे भी लेकर आ रहे हैं, खिला भी रहे हैं, ठीक है, तो एक पेंसिल लेट्स से एड मिलती है, आप वो साथ में उसके यूज कर लें, एंड देन बच्चा कैन डू द स्क्रिबलिंग और दीवार पे खेल रहा है या जो भी कर रहा है, ठीक है। Other than that, I think so. Okay, I just have another toy with me right now, and I think so कि अगर आप आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा ना उस तरह के इस तरह के बहुत सारे और टॉयज आपके पास हैं, ठीक है। दिस इज अ डोनट टॉवल। अब ये टॉवल, अब इसमें क्या है कि आपके पास इस तरह के बहुत से टॉयज होंगे, जैसे लेट्स से इसमें अगर ये रिंग है, आपने ये रिंग फिक्स करना है, ठीक है। हम्म आपने देखा होगा कि बड़े छोटे छोटी फिक्सिंग और उस तरह की बहुत मिनिमल चीजें की होगी, बट ट्राई करें कि अगर आपके बच्चा फाइन मोटर के साथ है तो आप लेट्स से थोड़े बड़े बड़े इस तरह के रिंग्स के साथ उसको काम करें, ताकि थोड़ा सा उसने ग्रिप इजीली कर लिया, एंड देन बच्चा आराम से डाल रहा है, ठीक है। हम्म तो इस तरह के आई थिंक सो कि आपने कहा ना कि अब प्ले टाइम कैसे अडेप्ट करना है, आई थिंक सो प्ले टाइम आपकी बच्चे की एबिलिटीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा स्पीच में थोड़ा लैक कर रहा है, तो आप कोई ऐसा प्ले टाइम कर लेंगे जिसके अंदर बहुत ज्यादा आपको लेट्स से बच्चों को वोकल नहीं होना पड़ रहा, ठीक है। आप इस तरह की चीजें आप उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं। नाउ दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन कि प्ले टाइम के लिए आपको क्या, आपके बच्चे के अंदर एबिलिटीज या लेट्स से कोई डिफरेंटली एबल बच्चा है तो उसके अंदर क्या लैकिंग है किसी चीज की, हम्म उसके अकॉर्डिंगली आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है. Let's circle back to our discussion on Down syndrome. What's the biggest misconception about Down syndrome that still surprises you today? Oh, there are a lot. There are actually there are a lot. अच्छा, हमने जो बेसिकली ज्यादातर देखी है ना, दैट इज जो बहुत ज्यादा प्रिवेल करती है, एक तो ये कि डाउन सिंड्रोम, वही मैंने आपको पहले बताया कि ये ट्रीटेबल, पीपल थिंक के डाउन सिंड्रोम इज ट्रीटेबल, हालांकि इट इज नॉट ट्रीटेबल, के बच्चा जा भी रहा है। आई टेल यू, पेरेंट्स अगर सेटअप के अंदर बच्चे को आके देख भी रहे हैं तो भी समटाइम्स उनकी एक्सपेक्टेशन होती है अच्छा हमारा बच्चा ये सीख जाए, अब हमारा बच्चा ये कर लेगा, और जब कर लेगा तो ठीक से कर लेगा, अगर उसमें Hmm. कोई लैकिंग आ रही है तो अच्छा जी ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो द थिंग इज कि देयर इट इज नॉट ट्रीटेबल, इट इज मैनेजेबल, तो Hmm. इसके इसको थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव से लेके चलना पड़ता है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम के बारे में वन थिंग दैट इज वेरी मच हाईलाइटेड इज दिस के एज स्पैन बच्चों का भी, ठीक है। कि बच्चे ज्यादा अरसा जीते नहीं है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सीन इंडिविजुअल्स हु वर इन देयर 40s एज वेल, ठीक है। इनिशियली एक था कि मे बी पीपल हैव सेड देयर वेरिंग ओपिनियंस, ठीक है, तो मैं क्या बताऊं इस बारे में। लोग कहते हैं कि मे बी कुछ ईयर सरवाइव करेंगे, इन बच्चों के डेफिनेटली डेफिनेटली हार्ट इश्यूज होते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी। बहुत सारे बच्चे विदाउट एनी हार्ट कंसर्न्स भी होते हैं, दे हैव दे हैव रिलेटिवली गुड इनफ लाइफ स्पैन, वो अपनी जिंदगी अच्छे एक लंबा पीरियड भी गुजारते हैं। एंड देन देयर इज वन मिसकंसेप्शन जो बहुत ज्यादा सराउंड करती है, दैट इज कि ये ओल्ड एज मदर्स के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। कि अगर आपकी एक सर्टेन एज हो जाती है, लेट्स से अगर आप अब तो लिटरली कहा जाता है कि 40-50 में अगर आप जाके लेट्स से अगर आप बच्चा कर रहे हैं तो दैट इज द टाइम कि आपका बच्चा डिफरेंट केबल होगा, ऐसी बात नहीं है। We have a lot of, in fact, my co-CEO, Miss Sana, she's a young mother, and her first one is Down syndrome. So the thing is कि young mothers के अंदर भी ये चीज equally prevail कर रही है, ठीक है। And then बच्चे milestones achieve नहीं कर सकते, milestones भी achieve करते, there's a lot of misconceptions out there, but these are a few जो कि मुझे लगता है कि highlight कर लेनी चाहिए। Right. And let's say if a parent watching this has a child who has Down syndrome, what's the one thing you want them to know? That is most probably कि आप अपने बच्चे के साथ डे वन से काम स्टार्ट कर दें, जिस दिन आपको पता चल गया डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। एंड वी कॉल दैट कंसेप्ट अर्ली इंटरवेंशन, ठीक है। अर्ली Right. इंटरवेंशन इज बेसिकली ऑल अबाउट ट्रीटिंग या एडिंग थिंग्स इनटू योर चाइल्ड की जो भी रूटीन है, लाइफ है, वट एवर इट इज, उसके अंदर बहुत अर्ली स्टेप्स लेना। मिसाल के तौर पे 6 माह का बच्चा, 6 माह में उसको क्या कर लेना चाहिए, वो चीज अगर नहीं कर रहा, वर्क ऑन दैट, ठीक है। सो हम अर्ली इंटरवेंशन के ऊपर बात करते हैं कि अगर बच्चे पेरेंट्स
आपको पता चल गया लेट्स से डाउन सिंड्रोम है, देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज अब्रॉड जहाँ पे ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी आपको पता चल जाता है कि योर चाइल्ड माइट हैव अ कंडीशन। Mm-hmm. बट पाकिस्तान में यूजुअली होता क्या है कि राइट एट द टाइम ऑफ बर्थ आप पेट को डॉक्टर्स, नॉलेजेबल डॉक्टर्स, ठीक है, रिसोर्स डॉक्टर्स वो आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डाउन सिंड्रोम, तो आप जो है वो इसके लिए टेस्टिंग करवा लें, ठीक है। देन देर इज जेनेटिक टेस्टिंग जिसको हम Mm-hmm. कैरियोटाइपिंग कहते हैं, वो करवा लें। वंस इट इज कंफर्म्ड कि जो बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, what you can do is start with early intervention. Early intervention में क्या होता है, there it is a set of different therapies, ठीक है, जिसमें आप करवा सकते हैं, फिजियो इंक्लूडेड है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी इंक्लूडेड है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा स्पीच थेरेपिस्ट ऑब्जर्व कर सकता है कि बच्चा जो है वो गूंग गाग कर रहा है, बैबलिंग स्टार्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो Mm-hmm. वो वाली चीजें आप उसके ऊपर काम स्टार्ट कर सकते हो। सो या अर्ली इंटरवेंशन इज इम्पोर्टेंट, एंड अदर देन दैट आप बच्चे को कोशिश करो कि उसकी ये सारी चीजें उस एज सुन एज पॉसिबल, ताकि बच्चा जो है ना जितना उसके लिए पॉसिबल हो वो एक टिपिकल चाइल्ड की तरह जिंदगी गुजार सके। टिपिकल मतलब नॉर्मल, हम नॉर्मल नॉर्मल अब नॉर्मल के वर्ड्स को हम रिफ्रेन करते हैं, बट टिपिकल मींस एक नॉर्मली डेवलपिंग बच्चा, आम बच्चे जैसे हमारे घर के हैं, ठीक है। जी. तो उसको आइसोलेट ना करें और उसको वो बिल्कुल वो ना करें कि बिल्कुल बच्चा नहीं कर सकता। सो अर्ली इंटरवेंशन उस पर बिल्कुल स्टार्टिंग से काम स्टार्ट होगा, बिकॉज रिजल्ट तभी आता है कि बच्चे माइलस्टोन्स डिले के साथ अचीव करते हैं, और वही बच्चे माइलस्टोन्स जल्दी अचीव कर पाते हैं जिन पे यंगर एज से काम स्टार्ट हो जाता है। Fatma, can you give us examples of simple play activities that can support cognitive and motor skill development in children with Down syndrome? अच्छा, अब यूजुअली सो आई हैव लिस्टेड डाउन अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज और चीजें, ठीक है, जो कि अभी तक हमने बात की है। जिस तरह आपको मैंने डायनो पजल दिखाई है, वो आपको इवन ये जो टॉवल दिखाया है, ठीक है, डाउन सिंड्रोम के अंदर बेसिकली जो डिलेज और जो चीजें लेट्स से जो इम्पैक्ट होता है ना, दैट इज आपकी में भी लो मसल टोन हो सकती है जिसकी वजह से आपकी फाइन मोटर्स आर नॉट वर्किंग दैट वेल। तो इसी तरह की एक्टिविटीज अगेन विद दिस, ठीक है, आपकी यानी कि फिजिकल चीजों को कैटर करने के लिए अगर आप उस तरह के कोई ब्लॉक्स ले रहे हैं, ठीक है, सॉफ्ट टेक्सचर के ब्लॉक्स ले रहे हैं, ठीक है, दैट Mm-hmm. मैटर्स अ लॉट। सेंसरी बच्चों को अगर काम डाउन करना है कुछ उसके लिए, तो इस तरह के आप ना सेंसरी स्टिमुलेटिंग सॉफ्ट टेक्सचर के टॉयज पजल्स आपने ले लिए, ऑलमोस्ट इसी तरह की चीजें। देन आई हैव एन अदर एक्टिविटी या टास्क बेस्ड थिंग कि बच्चों की डायनो पजल इज जस्ट लाइक आल्सो एनहांसिंग देयर कॉग्निशन। इसी तरह से जैसे ये एग सॉर्टिंग एक गेम है, ठीक है, लेट्स से Mm-hmm. मैचिंग के लिए आप लोगों की ये एक चीज है, टॉय एग्स है। अगर बच्चा लेट्स से ये uh, इसको फिट इन भी कर रहा है, ठीक है, इसको मैच भी कर रहा है, लेट्स से आई आई कैन शो यू अनदर एग एज वेल, ठीक है। अगर बच्चे को पता है कि अच्छा ये दो, दिस इज येलो, दिस इज ऑरेंज, एंड उसको मैंने फिक्स करना है, व्हाट शेप इज दिस, दिस इज लाइक अ ट्रायंगल, ठीक है, तो Mm-hmm. आई हैव टू फिट इट दिस ओवर हेयर। ये बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी इन्हांस कर रहा है, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ जितनी भी शेप सॉर्टिंग एक्टिविटीज हैं, ठीक है, जी. वो हेल्प आउट कर सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स, पजल्स, ये सारी चीजें फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर ही आती है। सो विद डाउन सिंड्रोम और विद एनी डिफरेंटली एबल्ड किड, all of these toys that are basically learning based toys, ये ज़्यादा important होते हैं। एंड आई ऑलवेज रिकमेंड एंड सजेस्ट टू पेरेंट्स के हेवी एक्सपेंसिव किस्म के उस तरह के टॉयज पे आप अपनी स्पेंडिंग करने के बजाय आप बच्चे के लिए टॉयज ही लेने हैं ना, जस्ट बाय गुड क्वालिटी एजुकेशनल टॉयज, गेट दोस फॉर देम रादर देन बच्चे को आपने बहुत एक्सपेंसिव अच्छा बड़ा क्यूट सा दिखने वाला टॉय है ये ले दें। और हर टॉय का ना, इवन व्हाट आई डू विद माय सन इज कि मैं हर टॉय का पर्पस देखती हूँ कि अच्छा व्हाट इज दिस सर्विस। तो इन दैट रिगार्ड्स डाउन सिंड्रोम को भी बहुत हेल्प आउट कर सकता है educational toys basically. Right. And obviously, both of our organizations believe that an inclusive community helps build a strong support system. So, can you tell us how parents can find local or online communities for support? Are you specifically
talking in terms of Down syndrome, Soha, ke, Yeah. communities of support. Yes, basically, अच्छा, Down syndrome की is not something जो कि बहुत ज़्यादा हर बंदे को awareness और उसके बहुत ज़्यादा institutes नहीं है. पाकिस्तान में there are very limited institutes that are working for Down syndrome. But I think so कि अगर आपका let's say बच्चा हो गया ना, तो आप जितने भी local या आपके area के अंदर स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, Mm-hmm. वहां पे जितने भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स एंड थेरेपिस्ट रिलेटेड टू डिफरेंट नीड्स बैठे हुए हैं, आई थिंक सो, Mm-hmm. आप उनको कंसल्ट कर सकते हो. देन देयर आर लॉट ऑफ सोशल मीडिया ग्रुप्स, ठीक है, जो आपको फेसबुक व्हाट्सएप पे मिल सकते हैं. हमारा वी आल्सो हैव a WhatsApp group. It has a large community of parents. It has a large community of parents from all over Pakistan जो आते हैं, डिस्कस करते हैं. जैसा हमारा ग्रुप है, ऐसा कि आपको और भी प्लेटफॉर्म्स मिल सकते हैं, ठीक है. थोड़ा सा Mm-hmm. आपको सर्च अप करना पड़ेगा. उसके अलावा आपको स्कूल्स स्कूल्स वुड आल्सो हेल्प. आप जाएं स्कूल्स के अंदर, आपको लगेगा मे बी आपका बच्चा जो है वो स्कूलिंग नहीं कर सकता, बट आप लोकल स्कूल्स के अंदर भी जाएंगे तो आपको वहां पे डाउन सिंड्रोम के भी केसेस और बच्चे मिलेंगे. और इवन आप अच्छे से अच्छे स्कूल के अंदर चले जाएं तो इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट अब काफी ज्यादा है. सो हम बेसिकली प्रमोट भी यही करते हैं कि बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ जाएं, तो स्कूल, आपके हॉस्पिटल्स, आपकी क्लिनिक्स, anywhere you can find the information, and the social media groups and communities that are very important. And parents can reach out to you guys for help regarding Down syndrome if they suspect their child has Down syndrome. ठीक है. अच्छा, if the parents would like to reach out to us specifically, तो हमारी जो presence है that is on social media platforms as well. आप हमें email भी कर सकते हैं, हमारे official email के ऊपर हमें Facebook, Instagram कहीं भी reach out कर सकते हैं. Then हमारे representatives के numbers भी spread out हैं. आपको हमारे social media channels पे मिल सकते हैं. So आप हमें वहाँ पे contact कर सकते हैं. Then you can always visit us for more information and for more specific information related to your child. So we have a social media presence, we have our contacts, and we are always open. We have our institute, and we are always open. We are located in Islamabad, I8, so you can always like visit us. Yes, and जो अभी आपने toys दिखाए हैं, they're all shop both के toys. So if parents Yes, are these are looking all the for toys toys, from yeah, these are all the toys from Shopgood, and I really like the quality. I just genuinely think कि बच्चे के खिलौनों के अंदर पेरेंट्स को बहुत एक कंसर्न होता है कि थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो. चीजें टूटने के लिए होती है नो वरीज, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग हो. एंड आई लाइक द फैक्ट कि दे आर मेजोरिटी आपके जो टॉयज हैं वो वुडन टॉयज हैं. सो या दे आर लाइक रियली गुड. exactly, and these toys are inclusive even for children who have a little bit of development delays or who have a Yes, long way to yes. go in developing Actually their they fine work. motor skills. Yeah, they work more. Let's say, they work more better for kids with different needs. That is what I can Understandable. say. They work better for us. Understandable. Thank you so much for your time, Fatma, and for all of your detailed insights. I hope Welcome. everyone watching this enjoys it, and I hope they get the help and the information that they need. Thank you so much once again.